کوئی بات نہیں پہنچتی ہوگی ایسی. صرف روانی پڑھنا صحیح نہیں ہے, آپ کا بھی جواب ہونا چاہیے. بلند آواز سے کہو گے سبحان اللہ. آپ میں افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو نہیں. بلند آواز سے کہیے. آپ بولیے مجھے اس کے لیے دارالعلوم کا ہونا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں, کہاں آپ کو سمجھ آتی؟ 2-4 لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بس. لازمی ہے دارالعلوم بنانا, لازمی ہے اس کے لیے کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے جہاں پر یہ لڑکے حفظ کریں, علم دین حاصل کریں, علم حدیث حاصل کریں. اسی لیے آپ دوسری حدیث سنیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے, قالت قال رسول اللہ, بلند آواز سے کہیے صلی اللہ. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. بہت اچھی حدیث ہے. جس کا جو قرآن کا ماہر ہو, جو قرآن کا, آپ سنیے, آپ کو بھی ماہر بننا ہے یا نہیں؟ جو قرآن کا ماہر ہو, اچھا اس کا سلوک یا اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کے نزدیک معزز پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. لیکن جو قرآن کا, بلند آواز سے کہیے, ہاں, ماہر مانے تجوید جانتا ہو, ماہر مانے اس کے رموزات جانتا ہو, ماہر مانے ناسخ و منسوخ کا علم ہو, ماہر مانے آیات متشابہات کا ماہر ہو. یہ ماہر کا معنی یہی ہے کہ اس کے پاس ایسی حالت علم کی ہونی چاہیے, یہ قرآن پاک کا ماہر ہو. اچھا, جو اب ماہر ہوگا, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا حساب معزز پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اتنا ہی نہیں, اگر آپ اس حدیث کو مکمل سنو گے تو آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے. کیوں؟ میری طرح بہت سارے اس مجلس میں ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا اچھے سے نہیں آتا. آپ کو ایک بات بھی نہیں کرنی آتی ہے, نہ آپ کو اب اردو پنجابی سنو گے پھر تو آپ کہاں, آپ وہاں سے بولتے ہی نہیں ہو کچھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے تو آپ اس کو جواب, اچھا ٹھیک, ہم سب مت ہیں سب جاننے والے, سارے قرآن کے ماہر مت ہیں. اگر اس مجلس میں کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کو اچھے سے قرآن پڑھنا آتا نہ ہو, جس نے قرآن اچھے سے نہ سیکھا ہو, اس کے لیے حدیث پاک ہے والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ. ایسا انسان جو قرآن پڑھتا ہو, جو قرآن, مگر اس کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہوگی کیونکہ حدیث پاک میں ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہوگی, قرآن اچھے سے پڑھنا نہیں آتا ہوگا. سنو میرے لوگوں, کوئی ایسا بھی ہوگا اس مجلس میں جو میری طرح قرآن پڑھتا ہے, ہمیں جب الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہوگا تو ہمیں سیدھا نظر آ کر سیدھا اٹھتا نہیں, تو ہم کہتے ہیں الف لام زبر ال. ہاں, یہاں کیا ہوتا ہے؟ اول, الف لام زبر ال, ہا میم زبر ہم, دال پیش. جب ہم ہجا کرتے ہیں تو اس کے بعد پڑھتے ہیں یہ الحمدو ہے. یہی معنی ہے کہ اس کو شاک ہوتا ہے, اچھے سے اس کو اٹھتا نہیں ہے. کوشش کرنے کے بعد 10-15 بار ہجا کر کے یہ ایک آیت پڑھ سکتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا بھی کوئی قرآن پڑھنے والا ہو, لہو اجران, تو اچھے پڑھنے والے سے اس انسان کو دگنا ثواب رب عطا کرے گا. اب آئی نا بات سمجھ؟ ہاں, لیکن تب تک ٹائم ہی چلا جائے گا. قرآن پڑھنے کے لیے ایک انسان کو اگر اچھا آتا ہو, قرآن اچھا سمجھتا ہو, اس کو اچھا تجوید, اس کی اچھی تجوید ہو, اگر انسان ایسا ہے اس کے لیے ایک ہی اجر. لیکن جس کو پڑھنے میں ہچکچاہٹ ہو, اچھے سے پڑھنا نہ جانتا ہو, تو کہا گیا ہے حدیث پاک میں اس کے لیے 2 اجر میرے اللہ نے رکھ دیے ہیں. بولو اب اگر کسی کو پڑھنا بھی نہ آتا, شاید آپ یہاں نہیں ہو, مجھے اگر اب کسی کو اچھے سے بھی پڑھنا نہ آتا, مجھے ذرا بتا دیجئے کیا اس کو قرآن پڑھنا چھوڑنا ہے؟ نہیں, بولیے نہیں. اس کو زیادہ اچھا پڑھنے سے زیادہ نہیں,
आयतें पढ़नी होंगी, क्योंकि उसको उससे ज्यादा सवाब भी मिलेगा। मिलता है। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत अच्छी हदीस पाक है। ये हदीस लाई है इन्होंने बुखारी फी सही किताबु फज़ाइलिल कुरान में, और हदीस को सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ला हसदा इल्ला फिस्नतैनी, हर जगह इंसान को हसद करना नहीं, गुनाह है। सही है ना? हसद करना गुनाह है। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हसद से अलैहि वसल्लम सारी नेकियां खत्म हो जाती। ऐसा कैसे? कहा कि जिस तरह आग लकड़ियों को बोसा बना देती है, जला देती है, इसी तरह हसद नेकियों को जला देती खत्म कर देती है, जला देती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हसद करना मना है, लेकिन 2 जगहों पे जायज है। शायद आज दोनों कामें होंगी इसी मजलिस में, अगर आप नजर रखोगे। 2 जगह पर हसद करना जायज है। सही से मत सुन रहे हो, मैं फिर एक एक को उठाऊंगा कि मैंने कौन सी बात की है। सबों को यहाँ एक ही दरवाजा, वहां पे मैं बैठूंगा। तो इतना याद रखिए कि एक हदीस को याद करना हमारे लिए तो जरूरी और लाजमी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हसद करना जायज नहीं है। बुलंद आवाज से कहिए, लेकिन 2 जगहों पे हसद करना जायज। अच्छा, जब 2 जगहों पे जायज की बात आई, लोगों मुझे कहने दीजिए ये 2 जगह कितनी अजीम होंगी। सुभान अल्लाह। हर जगह मना, लेकिन 2 जगहों पे जायज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, रजुलुन अल्लमहुल्लाहुल कुरआन। सुभान अल्लाह। नहीं, आप माइक को बंद कीजिए एक सेकंड, मैं इनका सुनूंगा ना, मुझे इनके साथ ही बात करनी है। ये सारे पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा इल्म बुर्दबारी सब रख रहे हैं। आपका मेरे साथ मामला, शायद आप मेरे सामने, मेरे साथ ही, मेरे इल्म के बराबर या मुझसे भी ज्यादा अगर होंगे तो फिर भी मुझे आपको बात सुनानी है, क्योंकि आप बैठे ही सामाईन में हो। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जगह हसद करना मना है, गुनाह भी है, लेकिन 2 जगहों पे जायज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली जगह ये, जब आप सुनोगे तो आप मचल के फिर खुद ही सुभान अल्लाह कहोगे, रजुलुन अल्लमहुल्लाहुल कुरान, वो शख्स जिसने कुरान की तालीम हासिल की। जिसने कुरान की तालीम हासिल की। अब मैंने कहा ही था कि वो जगह कितनी अजीम होगी, जिसके लिए हमें हसद करना जायज करार दिया गया है। कहा गया कि 2 जगहों पे पहली जगह कौन सी, कि किसी इंसान ने इल्म कुरान हासिल किया, कुरान का इल्म हासिल किया, कुरान को याद किया, कुरान को सीखा, लेकिन फहुवा यतलूहु अना अल्लैल व अना अन्नहार। बहुत अच्छी बात है ये, जिसने कुरान पढ़ा, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसको तिलावत करता है सुबह भी और शाम को भी, सुभान अल्लाह, दिन को भी रात को भी। अच्छा ठीक, आप कुरान को उतारते हो कभी कभी शल्फों से? बोलो, वो 1-2 उठाते हैं हाथ, आप भी उन्हीं में होंगे। अलमदार मुल्क कश्मीर ने क्या बेहतरीन तर्जुमानी इसकी की है, कुरान परा कौन मुदू, कुरान परा कौन गुई सूर, यमो पुर कुरान तिमो शब रोज वदू, वदा वदा गो लोगो अलमदार मुल्क कश्मीर फरमाते हैं कुरान पढ़ने से इंसान को आंसू आने चाहिए, कुरान से तकवा हासिल होना चाहिए, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इंसान को खौफे खुदा होना चाहिए। बोलो हर जगह हसद करना मना है, लेकिन जगह जायज। अच्छा करो पहले ज़ियारत, आपको देखना है फिर, या ये यहीं आएगा फिर मेरे बाद। 2 जगहों पे जायज है। पहली जगह ये कि इंसान ने क्या पढ़ा हो, कुरान, फिर इसकी तिलावत सुबह शाम करता हो। सुभान अल्लाह। आई ना बात समझ? अच्छा ठीक, अब इसने किया, फिर फसमी आहू जारुन लहू, लेकिन ये कुरान इसका पढ़ना इसका हमसाया सुन रहा है, इसका कुरान पढ़ना इसका हमसाया। अब देखो कितनी अच्छी बात है। अब आपको कुरान आराम से पढ़ना है या जोर से?
न बुलंद आवाज से कहिए, जोर से। ताकि आपका ये पढ़ना आपका हमसाया सुन सके। हाँ। अब बोलिए मुझे इस बात को करने दीजिए। अब कोई ऐसा इंसान जिसने कुरान का इल्म हासिल किया, अब इस कुरान को तिलावत सुबह शाम करता है, फिर इसका हमसाया सुनता है, फकाल लाइतनी ऊती तू मिस्लमा ऊतिया फुलानन, ऐ मेरे अल्लाह ये तमन्ना करता है अब ये हमसाया मुझे भी ऐसा ही हाफिज़े कलामुल्लाह या कुरान पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह। लोगों यहाँ पर हसद करना जायज है, यहाँ पर आपको हसद करने की इजाजत है। आप भी सुनिए मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो हमसाया ने इसकी ये तिलावत कुरान सुनी, ये यहाँ से अब हाथ उठाकर दुआ करता है, मेरे अल्लाह मुझे भी ऐसा ही कुरान का आलिम बना दे। सुभान अल्लाह। आज जितनों की दस्तार बंदी होगी या जितनों की हौसला अफजाई यहाँ होगी, अल्लाह उन्हें भी बहुत बड़े अल्लामा बनाए। आमीन। क्योंकि आपको पता है हमें अभी अहलुस सुन्नह वल जमात में बहुत सारे उलमा की जरूरत है जो आला हजरत अलैहि रहमा के मिशन की आबियारी कर सके, जो आला हजरत अलैहि रहमा की तालीम को आगे पहुंचाए। इसीलिए मेरी गुजारिश आपसे रहेगी, ये बंदा भी हमसाया भी हाथ उठाकर दुआ करता है, मेरे अल्लाह मुझे भी ऐसा कुरान का हाफिज या कुरान का आलिम बना दे। अच्छा आप क्या करोगे फिर जब आप कुरान के आलिम बनोगे? तो यहाँ से कहा मिस्लमा यामल, जिस तरह ये कुरान की तिलावत करता है मैं भी कुरान की तिलावत करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। शायद आई नहीं बात समझे भी। अच्छा ठीक है, इसकी और दूसरी जगह जो है कि हसद करना जायज है, क्योंकि इस मजलिस में ये इसलिए मुनक़द की जाती हैं क्योंकि यहाँ दारुल का बहुत सारा खर्चा होता है। ये मैं जानता हूं कि मुझे कितनी मेहनत एक साल में करनी पड़ती है 10 लाख रुपया जमा करने के लिए मुझे, और मैं सऊदुल औलिया को वो भेजता हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और इन भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, या इनकी जो जुमला इंतजामिया है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। लोगों आज 4,000 रुपया एक क्विंटल चावल आती है, 25 से 3,000 रुपया एक। हाँ देखो इसको पता है, शायद दुकानदार होगा ना, या इसको पता है घर का बड़ा होगा इसलिए पता है। आपको पता कितनी खर्चातें आज ज्यादा आती हैं, और दारुल के बच्चों को भी पालना पड़ता है, एक बाप बनना पड़ता है दारुल के बच्चों के पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पहला वो शख्स जहां पर किसी ने इल्म दीन पढ़ा हो, और इल्म दीन पढ़ा हो, इल्म कुरान पढ़ा हो, फिर इसकी सुबह शाम तिलावत करता हो। यहाँ से जो हमसाया ने सुना तो वो कहता है अल्लाह मुझे भी हाफिज ऐसा ही बना। आप पढ़ोगे आप इंशाअल्लाह, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक हरफ का 10। फिर सहाबा ने कहा अलिफ लाम मीम एक हरफ, कहा नहीं अलिफ अलग लाम अलग मीम अलग। जिसने ये 3 हरफ पढ़े 30 ने किया, हुरूफ 3 है ना अभी, अलिफ लाम और इसके नाम अमाल में अल्लाह 30 नेकियां लिख देगा। आज भी अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमाए कि हमको कुरान पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। तो मेरी गुजारिश अब दूसरी जगह रहेगी कि दूसरा कौन इंसान है जिसको मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे लोगों कि ये कौन है जहां पर आपको हसद करना जायज है। रजुलुन आताहुल्लाहु माला, वो इंसान जिसको अल्लाह ने माल अता किया हो, जिसको अल्लाह ने माल अता किया। अब जब अगर अभी किसी को ये जिम्मेदारी रखेंगे, बोलो कितना दोगे आज, तो क्या कहते हैं अशुन पानस से क्या जमाए बोलते हैं ना, अशुन पानस घर पालन तो क्या कर हो। लेकिन आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो आप इन दारुल के बच्चों को मदद करोगे, आप इतना यकीन रखो कि ये नीकियां आपकी जाया कभी नहीं होंगी, ये कब्र में भी आपको साथ देंगी और आखिरत में भी। मैं बोसनो हुई वना शायद तो अगर तो ये इल्म नाफिया पानुन चोंग थयो पात कुन तो आखिरत बड़ बार सफर तम खतर करियो इंतजाम। तो बकर गुजारिश रजुलुन आता माला, इंसाना सु यमिस खुदायन अता कर माल, यमिस खुदायन अता कर माल। अच्छा माल जिसको अता किया गया, कहा गया फहुवा युलिकुहु फिल हक, लेकिन वो इस माल को अल्लाह के रास्तों में खर्च। अच्छा आपको अल्लाह का रास्ता आप किसको कहते हो?
अरे सबसे बड़ा अल्लाह का रास्ता आपके नजदीक कौन सा है जहां पर आप माल दोगे? हाँ, नहीं, अल्लाह का रास्ता ही तो मैं कहता हूं। कौन सबसे बड़ा रास्ता आपको लगता है जो आज के जमाने में आपको लग रहा है? सुनो मेरे लोगों, आज तो बच्चे ऐसे बनते हैं जो माँ बाप को पीटा करते हैं सड़कों पर। आज ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बीवियों के साथ तशद्दुद करते हैं। आज ऐसे बच्चे हमारे औलाद हैं जिनको दीन की जरा बराबर भी खबर नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन्होंने दारुल खोले ही इसलिए हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत अता फरमाएं, ताकि आपके बच्चे बेहतर बने और उन्हें आपकी कदर कला जाए। इसीलिए मैं कहता हूं आज जो सबसे बड़ा रास्ता आप अल्लाह का देखोगे तो वही यही दारुल उलूम है, दीनी तालीम है। इसीलिए ये बात भी आखिरी में आपके सामने रखकर इजाजत ले जाता हूं। फहुवा युहलिकुहु फिल हक, ये इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। मगर फकाला रजुलुन, दूसरा इंसान उठा, जिसको अब इस पर हसद, शायद आई बात समझ। ये कितने थे? दो। एक आप कब करोगे? जो कोई कुरान पढ़ने वाला हो। अब दूसरा कब करोगे? जिसको अल्लाह ने माल दिया। अच्छा ठीक, लेकिन वो माल कहाँ देता हो? हाँ, अच्छा, आप भी कई कम्प्लेक्स 10-15 बनाओगे, पद बुझगस युथुई बनो तुन हसद जायज के यह माल तथ मालस हसद जायज युस तुम कमन वतन लगे खुदा सजन वतन तो बूझू लाइतनी ऊती तुम इस्लाम ऊतिया फुलानन। ए अल्लाह, मुझे भी ऐसा ही माल वाला बना दे जैसा माल आपने इसको अता किया है। क्यों? फामिल तुम इस्लाम यामल। अच्छा ठीक, मैं फिर बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। आप माल लेकर क्या करना चाहते हो? बोलो। जो जब हम अल्लाह से माल मांगते तो क्या कहते हैं? कोड़ छू। अब चुप ही रहोगे। वो फिर क्या कहते हो? मुझे जमीन खरीदनी है, तीसरे मकान बनाना है, चौथा बड़ी सी गाड़ी लानी है। ऐसी बातें हमारे माल की होती है। लेकिन जहां पर आपको हसद करना जायज है वहां पर मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब माल के लिए किसी शख्स पर आप हसद करोगे तो इतना ही कहो कि मैं भी दीनी कामों में उस माल को खर्च करता रहूं। सुभान अल्लाह। हंग तो मगे माशु काशिर पॉइंट वानन या नबी अशज लग होई परी माल जान औला हथ सरी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप बेदार हो? ये 2 मिनट सुनिए, 1 बजे इख्तिताम ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन इस मिनट को आप अच्छे से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म कुरान के लिए बयान फरमाते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नमाज असर के वक्त एक सहाबी आ गया। सब सहाबों ने नमाज जमात अदा फरमाई। एक को मेरे नबी ने कहा आप रुक जाओ। तिरमिज़ी की हदीस है। आप अच्छा क्यों? हुजूर ने फरमाया तुझसे कुछ बातें करनी है। बाकी सहाबा को कहो आप नमाज पढ़ो। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के बाद उनको रुखसत करो। वो निकलने लग गए। एक सहाबी बैठा तो मेरे नबी उठे, कहा ऐ सहाबी तुझे नमाज मगरिब से पहले ही इंतकाल करना है। जी। पढ़ी कौन सी नमाज है? असर। अब कब इंतकाल करना है? मगरिब से पहले। अब मुझे बोलिए इसमें कितना वक्त? 1 घंटा, 1.5 घंटा। अब सुनिए, अगर यहाँ के किसी बंदे को कहा जाएगा आपका 1.5 ही घंटा दुनिया में है, वो घर जाकर पहले चेक का दस्तखत करेगा। क्यों? क्योंकि इनको फिर बैंक से पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा, अगर कोई बंदा होगा तो वो कहेगा मैं अपने औलादों को वरासत तकसीम करूं कि पता नहीं फिर क्या करेंगे। तीसरा, अगर कोई होगा तो जाए नमाज डाल के कहेगा रब्बा मुझे माफ कर दो, मैंने खताएं गलती की। अब जो सहाबी सुन रहा है, क्योंकि इसको पता है वमा यांतिकु अनिल इन हुआ इल्ला वहीयुहा, इसको पता है कि जो नबी फरमाता है अपनी मर्जी की नहीं, रब की मर्जी पर इसकी जुबान चलती है। इसीलिए मेरे आका ने जब फरमाया तुझे नमाज मगरिब
انتقال کرنا ہے سوچنے لگ گیا. اب کیا کروں؟ اب سنو کیا کہا یا رسول اللہ جب اب مجھے مرنا ہی ہے اب آپ ہی کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو میری آخرت کے لیے بہتر رہے. سبحان اللہ. نہیں بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ایسا ہی کوئی کام آپ ہی فرما دیجئے جو میرے لیے بہتر رہے گی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اشتغل بالتعلم. یہ نہیں کہا جاؤ کچھ دیر آپ اپنی جائے نماز بچھا کر نمازیں لگاؤ نفل ادا کرو تو اللہ سے معافی مانگو. نہ کہا اے میرے صحابی اگر مجھ تک رکھتے ہو تو بس اتنی دیر کہیں آپ علم دین حاصل کرو وہی آپ کے لیے زیادہ راہ رہے گا. سبحان اللہ. اب بولو مجھے اس علم کی کتنی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث ہے آپ تھوڑے بیدار ہی ہو جی. ترمذی کی حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آ گیا کہا یا رسول اللہ میں جو ہی شام کو آرام کرنے جاتا ہوں بستر میں آ جاتا ہوں تو مجھے سورہ ملک کی آوازیں آ جاتی ہیں وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا ہے. اس طرح کی جب بات آئی تو میرے نبی علیہ السلام نے آئے چلو میں آ جاتا ہوں ساتھ. جب وہاں پہنچے تو میرے نبی نے کہا اے صحابی یہاں سے پھٹافٹ اپنا خیمہ اٹھا. یہاں آپ نے خیمہ کیوں دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے کیوں اٹھانا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ کیوں تو نے اپنا خیمہ قبر والے کے اوپر رکھا ہوا ہے. اچھا شاداب کریوا کے لوگ بھی ہوں گے نا اہل السنہ والجماعت کے ہی انشاءاللہ. آپ بھی ہو نا سنی حنفی صحیح العقیدہ والے. آپ میں مت ہے کچھ صلح کلی ولی کلیت مت ہے آپ ہو نا سنی. آپ سنو سنی صحیح العقیدہ والوں کے لیے میں بات کہوں گا. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ صحابی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی یہاں پہ بہت دیر تک سوئے رہے یا انہوں نے سونے کا انتظام بھی کیا تھا لیکن سورہ ملک کی آوازیں آتی رہیں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آ کہاں سے رہی ہیں. اسی لیے آپ کے لیے یہ میری گزارش آخری رہے گی کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا خیمہ اٹھاؤ آپ نے قبر والے کے اوپر رکھا ہے. حضرت اتنا مجھے جواب دیجئے جو اتنی دیر وہاں پر خیمہ لگائے ہوئے تھا اس کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اسی لیے تو ہم اپنے نبی کو علم غیب ماننے والا جانتے ہیں کیونکہ زمین کے اندر بھی میرا نبی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے باہر دیکھتا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ خیمہ بھی اٹھا. اس نے خیمہ اٹھایا دوسری جگہ لگایا لیکن عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے یہ کون صاحب ہے اور یہ قبر میں کیا کیا آج بھی قرآن پڑھتا ہے کیونکہ عملیں تو ساری ختم کب ہوتی ہیں مرنے پر ہی. تو قرآن یہ یہاں کیسے پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں قرآن سے محبت کرو دینی دارالعلوم سے محبت رکھو ان بچوں سے محبت رکھو واللہ اپنے علماء سے محبت کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا ہے میرے صحابی یہ جب سونے کے لیے دنیا میں جاتا تھا کبھی سویا نہیں ہے جب تک کہ سورہ ملک کی تلاوت نہ کرتا تھا. ہر بار سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا تھا. اللہ نے اتنی عنایت عطا فرمائی کہا جا صحابی تجھے میں قبر میں بھی یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا انعام عطا کروں گا. کمو کر حسب مارائی سون یکھنا گم چھوم پار پارائی سون یکھنا. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہاتھوں کو بلند کیجئے پھر دیکھیے کیا لکھا ہے اس نے. کمو در بار چھاڑئی چون در جلوئی میں ونتم تتب لارئی سونی کھنا. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گژھان یور
गच काबा मारग। योर एक गांव का नाम है, आप जानते हो कुलगाम, हमारा एक इलाका है। न्यामा जानते हो? न्यामा जी। न्यामा से 2 किलोमीटर दूर उस गांव को यूर कहते हैं। तो यारों में इसने इसलिए यूर लिखा क्योंकि वहां रसूलुल्लाह का मोए मुबारक है। सुभान अल्लाह। बगछा योर किन गच काबा मारग। काबा मारग में भी क्या है? हुजूर का मगर योर गचा किन काबा मारग तेल किन दर काब प्रारई सोने ना अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। इनकी आवाज में थोड़ी बुलंद सुनूंगा, इस शार पर मैं इख्तिताम करूंगा। सुनो क्या लिखते हैं। यशवना पाने शायर दबंची अथ इंतजारस मज हज गो मे वारा काल करई मां ताब वनी ज्याद कालस मरई मां म्यानी यारई सोन यखना अल्लाह बेरा और थोड़ा बुलंद। मका खायती दक्षरोजान में चुमचोन नहीं सारई सोनिक ना अल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह पाक आपका सुनना कबूल फरमाए, हमारा कहना कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए। मैं सऊतुल अवलिया जुम्मा कश्मीर का अदना खादिम बिल्कुल इन दोनों भाइयों या इनकी तमाम इस मेहनत को दिल से शुक्रिया इनका अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये इसी तरह और इससे भी ज्यादा दीन की खिदमत करें या दीन का बोल बाला करें। अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों को सलामत रखें, और सिर्फ इन दोनों को नहीं, क्योंकि एक इंसान से क्या होता है जब तक इसका मैनेजमेंट, इसका बॉडी या इसकी जो अराकीन हो जो इनके होते हैं वो जब तक इसमें ना हो, अल्लाह पाक की सारी जो इस रहमतल लिल आलमीन दरसगाह की दारुल के या जो इनके बाकी दारुल हैं उनके सारी जो इनकी बॉडी है, अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखें और दीन का ज्यादा ज्यादा जज्बा अता फरमाए। मैंने बात की है क्योंकि यहाँ पर अब मजलिस बहुत लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद करके रुखसत हो जाऊंगा कि जब बारी आ जाएगी आपको कुछ देने की, चंदा देने की, तो तब इनका भरपूर आप थोड़ा सा ऐसा ख्याल करें कि आपको लगना चाहे। आपके घर में कितने बच्चे होते हैं या फैमिली मेंबर कितने होते हैं? 6 या 7 या 10, इससे ज्यादा है किसी के? 10 सबसे ज्यादा है, लेकिन 10 को कितना खर्चा आता है घर में, ये मुझे आप मत बोलिए, आप खुद ही सोचिए थोड़ा। 10 लोगों को घर में कितना खर्च आता है? आप जिसके पास 50 होंगे, यहाँ पे कितने हजरत? 45 बच्चे हैं। अच्छा, दिन में जो करते हैं हिफ्ज वो 20 है और 45 बच्चियां। आप खुद ही आप कहिए कि ये कितने घर हो गए आपके हिसाब से? 8 हुए, 5, 6, 7, 8 घर हुए। अब 8 घरों का कितना खर्चा होगा वो एक इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए ये रसीद बुक, इसीलिए ये घर घर, इसीलिए ये बागातों में फिर जाते हैं, क्योंकि अगर लोग ऐसे होते ये इनको बागात में जाने ही नहीं देते, वो खुद ही अपना चंदा दारुल में जमा करने के लिए आ जाते। अगर आपको पता होती कि अस्सखियु हबीबुल्लाह करीबु मिनल जन्नह बईदु मिनन नार, अगर आपको पता होता कि सखी अल्लाह का बहुत प्यारा करीब और दोस्त है, इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जब जब ये आपको इस बारे में कहें तो आप ये ना देखें कि मैं कहीं क्या दिमस, आप इतना कहें कि युतु चुम त्युतु दिमस, मेनिस रिज़्क़ जिम्मेदार छु पाने ज़ात पाकी हजरती अल्लाह जल्ल शानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहता
چاہتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, پھر بھی میں 1 گھنٹہ رکا یہاں صرف اس لیے کیونکہ ان کی محنت میں دیکھتا رہتا ہوں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں, آپ سب کو بھی سلامت رکھیں. مائیں بہنیں جو یہاں آئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھیں. حیا اور شرم و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہیں عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا. حضرت نے